Good morning, children. Today we are going to do the story of the selfish giant. Characters in folklore, mythology, literature, and cinema that we are always assumed to be evil. Yet, some authors choose to surprise us by showing us that a book cannot be judged by its cover. We have some examples. For example, a scary looking ogre with a Scottish accent. He is cranky but actually peaceful and loving on the inside. Another example is of Shrek. He is known for the good of witches of south, and he is a sorceress in the land of Oz. She is deeply protective of her citizens. Then there is another, Casper. He is a bitter, solitary girl with interests in things that considered odd or dark. She is creative, loyal, and brave. And there's another example, Glinda, a cute, friendly child ghost who lives in a haunted house. He loves to scare people but is never evil. In fact, he loves befriending humans. So we see that there are characters which we think are evil but are very good at heart. We will do such a story today about the selfish giant. This story is written by Oscar Wilde. He was an Irish novelist, short story writer, playwright, and a poet, a major celebrity in his time, both for his personality and his art. Wilde was celebrated for his wit and beauty of language, both written and spoken. In his plays, he tended towards social satire, while his short stories and his famous novel, The Picture of Dorian Gray, often had a fable-like quality. देखते हैं कि इस कहानी को ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है और ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक एवं कवि थे। इनकी लेखनी सामाजिक बुराइयों की ओर दिखाता था। इनका प्रसिद्ध नॉवल है डोरियन ग्रे। अब हम कहानी शुरू करते। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू प्ले इन द जायंट्स गार्डन। हम देखते हैं कि हर दोपहर बच्चे स्कूल से आते साथ ही इस जायंट यानी दानव के बागान में खेलने चले जाते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, बहुत ही बड़ा और सुंदर बाग था, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, मुलायम हरे घास थे। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. यहाँ वहाँ घास के ऊपर फूल खिले हुए थे और 12 पीच के पेड़ थे और ये बसंत में उसमें बहुत सुंदर फूल, गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल खिलाते। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और पतझड़ के मौसम में उसमें फल निकल आते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. पक्षी इतने सुंदर गाना गाते थे तो बच्चे खेल छोड़ करके उन्हें सुनने के लिए खड़े हो जाते थे। हाउ हैप्पी वी आर, दे क्राइड टू ईच अदर। हम कितने खुश हैं, सब अपने आप एक दूसरे से बोलते थे। वन डे द जायंट केम बैक। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओक एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years। 7 साल से वो अपने दोस्त के साथ कॉर्निश ओक के साथ रहा था। After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle. तो 7 साल के बाद ये वापस एकदम निश्चिंत होकर के वापस आ गया और अपने कासल में यानी कि अपने किला में रहने लगा। When he arrived, he saw the children playing in the garden। जब वो पहुंचा अपने किले पे तो देखा कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे उनके बागान में। What are you doing here? he cried in a very gruff voice, and the children ran away। उन्होंने चिल्लाया, तुम बच्चे सब यहाँ क्या कर रहे हो? सुनकर बच्चे डरकर
भाग गए। "This is my garden," said the giant, "and I will not allow anybody to play in it but myself." दानव ने कहा कि ये मेरा गार्डन है, मैं इसमें खेलूँगा केवल, और मैं किसी को अनुमति नहीं देता हूँ इसमें खेलने के लिए। So he built a high wall around it and put up a notice board, "Trespassers will be prosecuted." तो उन्होंने एक बहुत ऊंची दीवार बनवा दी चारों तरफ और एक नोटिस लगवा दिया, "Trespassers will be prosecuted." Trespassers means कोई भी अंदर आने वाला व्यक्ति, इंट्रूडर्स, विल बी प्रोसिक्यूटेड मीन्स उन्हें सजा दी जाएगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, बहुत ही स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वे टू प्ले। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड डिड नॉट लाइक इट। तो बच्चों ने, अब उनके पास कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए, रोड पे खेलने गए, लेकिन रोड जो थी बहुत ही धूल भरी थी और बहुत उस पर पत्थर थे, तो उन्हें पसंद नहीं आए। दे यूज टू वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। तो जब उनकी क्लास ख़त्म हो जाता था तो वो ऊंची दीवार को देखकर सोचते थे, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और बातें करते थे सुंदर बाग उसके अंदर के बारे में। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम सब कितने खुश थे अंदर। दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से उन्होंने कहा। देन स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। उसके बाद बसंत आई और पूरे देश में बहुत सुंदर फूल खिले और छोटे छोटे पक्षी गाना शुरू कर दिए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन केवल इस दानव के ही बाग में ठंड था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एंड देयर वर नो चिल्ड्रन। पक्षी भी वहाँ जाना नहीं चाहते थे गाना गाने के लिए, और बच्चे भी नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ों ने फूल खिलना भूल गए। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the poor children that it slipped back into the ground again. एक बार एक छोटी सी फूल खिली, लेकिन जब उसने ये नोटिस बोर्ड देखा तो तुरंत उसे बहुत दया आई बच्चों पे, और वो तुरंत फिर से ज़मीन के अंदर चली गई और सो गई। The only people who were pleased were the snow and the frost. तो कौन खुश था? स्नो और फ्रॉस्ट। स्नो क्या होता है? आइस, बर्फ, और फ्रॉस्ट एक तह जो बर्फ की होती है। स्प्रिंग हैड फॉरगॉटन दैट दिस गार्डन, और बसंत भूल गई थी इस बाग के बारे में। दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड। तो बर्फ ने आपस में बात की कि हम अब साल भर यहाँ पे रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ अ ग्रेट वाइट क्लोक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। तो पूरे बर्फ़ की चादर वहाँ पे फैल गई, सारे पेड़ों में बर्फ़ हो गया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, उसके बाद उन्होंने नॉर्थ विंड को बुलाया टू स्टे विद देम, वहाँ आने के लिए। एंड ही केम, वो आए, एंड ही वॉज रैप्ड इन फर्स। तो फर यानी कि रोए में ढके हुए थे। एंड ही रोड ऑल द डे, बहुत तेज तेज ठंडी हवाएं चलती थी, और एंड ब्ल्यू द चिमनी पॉट्स डाउन, और इतनी तेज तेज वो हवाएं चलती थी कि चिमनी के पॉट्स जो कि होते हैं वो सारे टूट गए। This is a delightful spot, he said. We must ask the hail for a visit. तो आपस में बर्फ़ बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, हम लोग हेल को बुलाते हैं। हेल क्या होता है? छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े, गोले। So the hail came every day for 3 hours. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. तो इन लोगों ने, बर्फ़ ने हेल को बुलाया, जो कि गोले होते बर्फ़ के, वो 3 घंटे तक खूब तेज़ तेज़ गिरते, आवाज़ करते
करते और टूट जाते। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, ग्रे कलर के थे, एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उनकी जो श्वास थी वो बिल्कुल बर्फ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. दानव ने अपने आप से सोचा कि मेरे बाग में क्यों नहीं वसंत आई है, और काश अब बदलाव आएगा इस मौसम का। बट द स्प्रिंग नेवर केम, नॉ द समर, ना ही बसंत आई और ना ही गर्मी के दिन आए। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड। तो पतझड़ के मौसम में फल आए सारे गार्डन में, लेकिन जायंट के, दानव के गार्डन में नहीं आए। उन लोगों ने कहा कि ही इज़ टू सेल्फिश, बहुत ही स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसी वजह से वहाँ हर समय ठंडी रहती। द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। तो वहाँ पे हमेशा ठंड बनी रहती और ठंडी हवाएं चलती रहती। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइन अवेक इन हिज बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window. एक सुबह दानव ने, जब वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, जगा हुआ था, तो उसने बहुत सुरीली आवाज़ सुनी। तो उसके कानों में इतनी मिठास लगी कि वो सोचा शायद राजा के संगीत गा रहे हैं, लेकिन वो एक छोटी सी पक्षी थी जो गा। So we see it was a little bird that was singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. उनके गार्डन में एक पक्षी को गाए हुए इतने दिन हो गए थे कि उन्हें ये बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छा संगीत लगा। देन द हेल स्टॉप्ड, और सुन करके हेल यानी गोले बर्फ के गिरने बंद हो गए ऑन द हेड, एंड द नॉर्थ विंड, और ठंडी हवाएं भी रोर करना, गरजना बंद कर दी, एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू, और एक बहुत अच्छी सी खुशबू फूलों की चली आई थ्रू द ओपन केसमेंट, केसमेंट वो खिड़की होती है उसके थ्रू। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, तो उन्होंने सोचा कि आखिरकार वसंत मेरे बाग में आ ही गई। उस दानव और उन्हें सोचा, और वो अपने बिस्तर से उछलकर बाहर आया और बाहर निकला। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल वंडरफुल साइट। डू a little hole, through a little hole in the wall, the children had crept in. एक छोटी सी छेद से दीवार में हो गई थी, जिसके से अंदर बच्चे चले आए। एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो टहनियों पे, पेड़ के टहनियों पे बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ चाइल्ड, हर टहनी पे एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे वर कवर्ड देमसेल्व्स विथ ब्लॉसम्स, और पेड़ इतने खुश हो गए थे बच्चों को देख करके कि वो अपने सारे टहनियों को फूलों से भर लिए थे। एंड वो वेविंग द आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और धीरे धीरे अपने पत्तों को सहला रहे थे इन बच्चों के सरों के ऊपर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट, पक्षियाँ गा रहे थे, उड़ रहे थे खुशी से। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और फूल छोटे छोटे हरी घास से बाहर झांक रहे थे। इट वॉज लवली सीन, बहुत ही सुहावना सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर, केवल एक कोने में, इट वॉज स्टिल विंटर, वहाँ पे केवल विंटर ठंड था। इट वॉज द फर्दरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बिल्कुल एक छोर गार्डन का था। एंड इट वॉज स्टैंडिंग एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उस कोने में कौन था? एक छोटा सा बच्चा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ के टहनी के ऊपर पहुंच नहीं पा रहा था। ही वॉज वंडरिंग ऑल अराउंड,
and crying bitterly. वो पेड़ के चारों बगल घूम रहा था और बहुत तेज तेज रो रहा था. The poor tree was still quiet, covered with frost and snow. तो पेड़ जो थी वो बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई थी और वहाँ पे ठंडी हवाएं गरज रही थी. Blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. तो पेड़ ने अपने आप को अपनी टहनियों को झुकाया, लेकिन वो बच्चा इतना छोटा था कि वो नहीं पहुंच पाया. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड एट. और ये दानव का हृदय पिघल गया. मेल्टेड. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. उसने कहा मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ. ही सेड नाउ आई विल नो वाई स्प्रिंग कुड नॉट कम हियर. अब मुझे पता चला कि अब तक बसंत क्यों नहीं आए. आई विल पुट that poor little boy on top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the garden children's playground forever and ever. तब अब दानव को समझ में आया कि क्यों बसंत नहीं आई थी, और उसने निश्चय किया कि पूरी दीवार को वो गिरा देगा और अब उसकी बाग बच्चों का बाग होगा. ही वॉज रियली वेरी सॉरी. बहुत ही दुखी था फॉर उसने जिस काम को करा था. सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर्स एंड ओपन द डोर क्वाइटली एंड सॉफ्टली. तो वो नीचे धीरे दबे पाँव, क्रेप्ट मतलब दबे पाँव नीचे उतरा सीढ़ियों से, और उसने अपने सामने का दरवाज़ा खोल दिया धीरे से. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. और बाग में गया. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम. लेकिन बच्चों ने जब देखा तो सब भाग गए डर के मारे. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. और फिर से बाग में ठंड हो गया. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. केवल ये छोटा बच्चा नहीं दौड़ा, क्योंकि ये जो जायंट था वो पीछे से आया था और उसके बच्चों की आंखों में आंसू था, इसीलिए वो इस जायंट को नहीं देख पाया था. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री. और बहुत प्यार से बच्चे को गोद में उठा करके जायंट ने उसे टहनियों पे बैठा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट. और एक बार के पेड़ में ढेर सारे फूल निकल आए, पक्षियाँ आ गए. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम. छोटे बच्चे ने अपने दोनों हाथ दानव के चारों बगल गले लगाए और उसे बहुत प्यार से पुचकार लिया. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक. और जब दूसरे बच्चों ने देखा कि जो ये जायंट है अब वो नाराज़ नहीं हो रहा है, तो सब वापस दौड़ के चले आए. और जैसे ही वो वापस आए उनके साथ साथ बसंत भी चली आई. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. अब जायंट ने कहा कि अब ये तुम्हारा बाग है, और एक बड़ी सी कुल्हाड़ी एक्स लेकर के वो पूरे दीवार को ढह दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द लिटिल चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. और दोपहर को जब लोग जा रहे थे अपने काम को, तो उन्होंने देखा कि जायंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है सबसे सुंदर बाग में. All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरे दिन बच्चों ने खेला और शाम को इन्होंने जायंट को से अनुमति लेकर वापस घर गए. But where is your little companion? He said. The boy, I have put it onto the tree. लेकिन जब बच्चे जा रहे थे तो जायंट ने उनसे पूछा कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं जिसे मैंने पेड़ पे बैठाया था. जायंट लव्ड हिम द बेस्ट. और जायंट उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने जायंट को पुचकारा था, प्यार किया था. वी डोंट नो. उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, हमें पता नहीं. ही हैज़ गॉन अवे. वो चला गया. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हियर टुमारो सेड द जायंट. तो जायंट ने कहा कि उनसे कहना बच्चे से कि कल आए. बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड and had never seen him since before, and the giant felt very sad. बच्चों ने बताया कि वो कहाँ से आया उन्हें पता नहीं, और उसके बाद उन्होंने उसे देखा नहीं. ये सुन कर के जायंट बहुत दुखी. Every afternoon when school was over the children came and played with the giant,
But the little boy whom the giant loved was never seen since. हर दोपहर बच्चे स्कूल से आने के बाद इस बाग में खेलते थे, लेकिन वो बच्चा जिसे जायंट बहुत प्यार करता था वो कभी नहीं देखा गया. द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्ग्ड फॉर द फर्स्ट लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम. जायंट जो था वो सभी बच्चों के प्रति दया दिखाता था, लेकिन वो चाहता था कि जिसे उसने सबसे पहले दोस्त बनाया है उससे मिले, उससे बात करे. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम. और वो चाहता था उससे मिलने के लिए, बातें करने के लिए. वो अक्सर कहता था. ईयर्स वेंट ओवर एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल. He could not play about any more, so he sat in the huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. सालों गुजर गए और जायंट बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया, फीबल. उसके बाद अब वो बच्चों के साथ खेलता नहीं. अब वो अपने बड़े से आर्म चेयर में बैठ जाता और वहाँ से बैठ कर के बच्चों को देखता खेलते हुए. आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स. उसने कहा मेरे तो बाग में बहुत सुंदर फूल है, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल है. वन विंटर morning he looked out of the window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely spring asleep and the flowers were resting. एक ठंडी के दिन वह अपनी खिड़की पे बैठा हुआ देख रहा था. अब उसे जाड़े से नफरत नहीं थी, क्योंकि वो अब समझ गया था कि ये बसंत सोई हुई है. सडनली ही रब्ड हिज आइज. उसने अपनी आँखों को मला. इन वंडर एंड लुक्ड आउट एंड लुक्ड. और देखा और देखा. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट. बहुत ही सुंदर दृश्य था. इन द फादरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम्स. तो एक कोने में गार्डन के एक पेड़ था जिसमें बहुत ढेर सारे फूल खिले थे. इट्स ब्रांचेस वर ऑल गोल्डन. उसकी टहनियाँ सुनहली थी. एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम. चांदी के फल लटक रहे थे. अंडरनीथ स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. और उसके नीचे सुंदर वो प्यारा सा बच्चा जिसे वो बहुत प्यार करते थे वो खड़ा था. डाउन स्टेज रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय. खुशी के मारे दौड़ कर नीचे गया और बाग में. ही हेस्टेंड अक्रॉस द गार्डन. तेजी से गार्डन की से होता हुआ गया और उस बच्चे के पास पहुंचा. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर एंड ही सेड. जब वो पास आया बच्चे के तो उसके चेहरा लाल हो गया और गुस्से से उसने कहा, हु हैड डेयर टू वुंड दी. तुम्हें किसने चोट पहुंचाई है. फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स. क्योंकि उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में 2 कील के निशान पड़े थे. एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट. और पैरों में भी 2 कील के निशान पड़े थे. हु हैड डेयर टू वुंड दी. किसने तुम्हें चोट पहुंचाई है. जायंट ने बोला. टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम. मुझे बताओ ताकि मैं अपना बड़ा सा स्वॉर्ड ले लूँ और उसे मार दूँ. नहीं, आंसर द चाइल्ड. नहीं, बच्चे ने कहा. बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. ये सारे चोट जो है प्यार के चोट है. हु आर दाउ said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. उसने पूछा जायंट ने कि तुम कौन हो. और यहाँ पे जायंट उसने पूछा और वो अपने घुटने पे गिर गया उस बच्चे के सामने. And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. तो बच्चे ने कहा कि एक दिन तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया था, आज तुम मेरे संग चलो मेरे बाग में जो कि स्वर्ग है, पैराडाइज है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विथ ब्लॉसम. और उस दोपहर जब बच्चे दौड़ कर आए खेलने के लिए तो उन्होंने देखा कि जायंट जो है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, लेट हुआ. अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा था और सारे फूल उस पर गिरे पड़े थे. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश जायंट.
बच्चों आपको अच्छा लगा होगा आई होप. थैंक यू चिल्ड्रन.